Hello people, in this video we will talk about John Donne's poetry, Death Be Not Proud. John Donne was a metaphysical writer. John Donne uh, falls under this Jacobean and Caroline age period. Um, John Donne and the followers of John Donne, like Marvel and other writers, they follow John Donne's writing. And now let's focus on this poetry, Death Be Not Proud. Okay, so now this Death Be Not Proud was also known as Holy Sonnet 10. यानी कि that this poetry was, the name of this poetry was Holy Sonnet also. We can name this poetry as Holy Sonnet 10, and it was written by Donne in it was written in 1609 and published in 1633. So now John Donne actually says about this thing. He says that डेथ के पावर को बताया गया है. लाइक एक्चुअली ही सेज डेथ दैट ही इज आस्किंग डेथ that you should not take pride of yourself, you should not be proud of yourself. Like self pride nahi hona chahiye death ko, because people are fearful of you, people get scared of you. Why? Because he is kind of trying to dive deeper into the meaning of death, what death is all about, what situation death brings in the life of a person. Okay, when a person dies, what kind of situation what kind of situation it is, what kind of situation occurs when any person dies, and the beloved ones of that person, how they feel, and all that, everything he is telling in this poetry. So now he begins by saying that death, you should not be proud of you should not take pride of yourself just because people are scared of you, people are very fearful of you. Because he says that human beings, they get fearful, they are scared of what and whom. We as human beings, we actually are fearful of things or people in power, obviously, right? Like for example, a common man would, if a common man has not done anything wrong, and even if he is blamed of kind of theft, blame that he has done a theft, or he has indulged in a theft or robbery or any kind of illegal activity, but this normal person, he is a very decent person, he is a person who does 9 to 5 job, normal wala person, and does hard work every day to feed his family and tries to satisfy his family and to make his family happy. अगर ऐसे पर्सन को, अगर एक पावरफुल पर्सन, कोई नेता या फिर कोई सोशली पॉलिटिकली या फिर इकोनॉमिकली एक कोई ऐसा इंसान है जिसके पास बहुत पैसा है, पावर है, यानी कि पैसा इज इक्वल टू पावर, इंडिया में स्पेसिफिकली यही तो होता है. यानी कि जो लोग पावर में हैं, अगर वो क्या कर रहे हैं, वो जो छोटे लोग होते हैं या फिर जो आम लोग होते हैं, उनको दबाते हैं, क्योंकि उनके पास मतलब यानी कि बड़े लोग जिनके पास पावर है, वो छोटे लोगों को दबाएंगे, यही करते हैं ना. क्योंकि छोटे लोगों का मतलब ये नहीं है पुअर पीपल एंड ऑल दैट. छोटे लोग का मतलब ये है अकॉर्डिंग टू, जैसे जो रिच पीपल होते हैं वो पुअर पीपल को किस तरीके से देखते हैं, किस आँखों से देखते हैं, तो उस तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ. ठीक है, यानी कि अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति, अगर कोई साधारण सा व्यक्ति है, उसने कुछ गलत काम नहीं किया है, लेकिन उसके ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगाया गया है कि तुमने ये किया है, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि उस गरीब या फिर मिडिल क्लास व्यक्ति के पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं है अपने लिए लड़ने का, खड़े होने का, तो वो क्या करेगा, या तो मतलब वो मतलब झुक जाएगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा उसकी गलती, या तो फिर वो प्रोटेस्ट करेगा. उसके पास यही ऑप्शन होगा ना. यानी कि क्या हो गया, हम लोग जो कॉमन मिडिल क्लास लोग होते हैं, हम लोग कोई भी मतलब जो बड़े इंसान होते हैं, अमीर इंसान होते हैं, जो इंसान पावर में होता है, उनसे हम लोग यानी कि बोलते हैं ना वो पंगा लेने से डरते हैं हम लोग, मतलब उनके आसपास भी जाने नहीं खोजते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि क्या ज़रूरत है किसी से बेकार में उलझना, है ना. हम लोग इसलिए मतलब सोचते हैं कि ठीक है, जो है, अगर माफ़ी मांगने से भी काम बन जाएगा तो ठीक है, लेकिन हम लोगों को लड़ाई नहीं मोल लेना है, क्योंकि हमारे पास इन्फ्लुएंस नहीं होता है ज़्यादा. सोशल जो है जानकारियाँ
सोशल सर्कल उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है कि हमें अगर कोई भी गलत काम में हम फंस जाए तो हमें कोई निकाल पाए। ओके, तो क्या होता है ओवर इन मतलब यानी कि इन ऑल हम लोगों ने ये सीखा कि जो पीपल होते हैं हु आर द कॉमन पीपल हु हैव नॉट डन एनीथिंग राइट, सॉरी हु हैड नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, बट देन टू दे आर सप्रेस्ड बाय द पीपल हु आर इन पावर। दैट मीन्स पावर से जो है कोई भी व्यक्ति अगर पावर में होता है तो हम लोगों को डर लगता है, राइट। दैट मीन्स डेथ से हम लोग क्यों डरते हैं? कोई भी इंसान मरने से क्यों डरता है? क्यों? क्योंकि यानी कि मरने के जो है डेथ है यानी कि जो मृत्यु है उसके पास मतलब पावर है हमें डराने की। बात तो यही हुई ना, हम लोग किस चीज़ से डरते हैं? आम आदमी है मतलब हर एक इंसान किस से डरता है? अपने से बड़े, अपने से जो पावरफुल इंसान से डरता है ना। इसका मतलब मृत्यु से हम लोग क्यों डरते हैं? क्योंकि उसमें कुछ तो बात है जिसके कारण हम मृत्यु जो है जो मृत्यु बोलते हैं। जो जब इंसान मर जाता है तो मरना किसी को पसंद नहीं है। कोई भी अगर बोलोगे कि मरना पसंद है, मरने को जो है अगर आपको जो डेथ को गले लगाओगे तो कोई नहीं चाहेगा मरना। चाहे किसी की ज़िंदगी कितनी भी ख़राब हो, कोई मरना नहीं चाहता क्योंकि ये बहुत पेनफुल इवेंट होता है। ओके, तो सो जॉन डन इज सेइंग दैट बट देन टू वी शुड नॉट give power, or we should not give power to death. That means he is saying that death is just an event, it's just a uncomfortable, unsuitable event, an event which is very uncomforting, unsuitable, and which is not even acceptable by any person. And it is just like a rest, permanent rest of the body but not of the soul, because when a person dies, now he says that death is just like rest. Now John Donne compares death with rest and sleep. Now he says that ki like when a person is death is just like rest and sleep. That means when a person sleeps during the night for 7 to 8 hours long, जब सोता है कोई भी व्यक्ति तो at that time the person dreams, and when we usually sleep during the night we our body doesn't move. That means body इधर उधर हम लोग जो है मूव करते हैं बट कॉन्शियसली मूव नहीं करते हैं ना, कोई एक्टिविटी तो नहीं करते हम लोग उस टाइम पे। हम इसलिए हम लोगों को ड्रीम आता है एंड देन फिर हम लोग कोई भी मतलब ऐसे पढ़ना लिखना या फिर कोई भी कॉन्शियस एक्टिविटी नहीं कर पाते ना उस टाइम पे, क्यों यानी कि रेस्ट ले रहे हैं उस टाइम पे, हम लोग स्लीप कर रहे हैं। दैट मीन्स नाउ ही सेज दैट डेथ इज बट सी नाउ दैट मीन्स अब मैं शॉर्ट में समझा रही हूँ। जॉन डन सेज दैट कि व्हेन अ पर्सन स्लीप्स और इज रेस्टिंग, व्हेन द पर्सन इज टेकिंग अ नैप और इज रेस्टिंग और इज स्लीपिंग, दैट स्लीप, दैट स्टेट ऑफ स्लीप, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जब हम लोग हर रात सोते हैं, तो ये जो एक स्लीपिंग टाइम है, ये रेस्टिंग टाइम है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत कंफर्टिंग है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है डेथ से। लेकिन डेथ जो सिचुएशन है, डेथ जो एक स्टेट है, ये बहुत बुरा स्टेट है, बहुत अनकम्फर्टिंग स्टेट है। क्योंकि जब एक इंसान की डेथ होती है तब क्या होता है, वो जो बॉडी होती है, बॉडी का कोई काम नहीं होता है, बॉडी यूजलेस हो जाती है, हार्ट बंद हो जाता है, हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, एंड वो पर्सन और उठ नहीं, और कभी नहीं उठता है, हमेशा के लिए चल जाता है। अपने बिलवड जो भी इंसान उनसे प्यार करते हैं, अपनों को वो छोड़कर चला जाता है, ठीक है। लेकिन वो उसकी बॉडी जो है, वो बॉडी अब कोई काम की नहीं है, लेकिन उसका जो सोल है, मतलब उसकी जो आत्मा होती है बॉडी में, मतलब हर एक बॉडी में एक आत्मा होती है, सोल होती है जो अनडिस्ट्रक्टिव है। सोल कभी नहीं ख़त्म होती, कभी नहीं, सोल कभी डिस्ट्रॉय हो ही नहीं सकती। तो वो सोल क्या करेगा, जब एक इंसान मर चुका है, मर जाता है, तब उसमें से सोल निकल जाता है, राइट। सोल निकल जाता है, फिर वो सोल क्या करता है, नए बॉडी की तलाश में करता है, नए बॉडी की तलाश में, यानी कि न्यू बॉडी खोजेगा जहाँ पर वो प्रवेश करेगा एंड फिर से न्यू लाइफ स्टार्ट करेगा, ठीक है, एक न्यू बॉडी के साथ। दैट इज सोल इज कंटिन्यूसली चेंजिंग बॉडीज, ओके, न्यू लाइफ ले रहा है, न्यू लाइफ। दैट मीन्स कि ये कोई इंसान मरता है ही कहाँ, बस बॉडीज चेंज हो रही हैं, बॉडीज चेंज हो रहा है, फिर बॉडीज़ को जला दिया जा रहा है। यानी कि बॉडी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, एक बॉडी एक मशीन है जो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद बॉडी का कोई काम नहीं है, बट जो सोल है वो फिर से रीबर्थ हो रही है, यानी कि सोल का कभी भी डेथ नहीं है। दैट मीन्स जॉन डन सेज दैट डेथ इज जस्ट अ टाइम पीरियड of what? Time period of life on the earth,
एंड देन आफ्टर लाइफ, दैट इज लाइफ ऑन द डेथ क्या है, मतलब मृत्यु क्या होती है। जैसे कि एक पर्सन जब जिंदा है, फिर जब पर्सन जो भी अपने लाइफ की जो भी जर्नी करता है, उसके बाद जब मर जाता है, तो इंटायर जो अपने लाइफ में जो जर्नी, अपनी लाइफ जर्नी में जो भी उसने एक्सपीरियंस किया, जो कुछ भी उसने मतलब देखा है, जो भी एक्सपीरियंस किया है, वो उसके साथ गया नहीं है। उसकी बॉडी मतलब ख़त्म हो गई है, लेकिन उसका सोल, उसके सोल जो है, बॉडी जो होते हैं उसका जो सोल, जो आत्मा होती है, उसने सारे एक्सपीरियंस को अपने अंदर मतलब समा लिया है। एंड फिर वो न्यू बॉडी के अंदर जाएगी, मतलब फिर वो सारे एक्सपीरियंसेस को, न्यू एक्सपीरियंसेस लेगी। तो ऐसे ऐसे करके साल, हजार साल ऐसे करके कंटिन्यूस होता रहेगा। एक सोल कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगी। समझ रहे हैं बात को। तो वैसे ही और ये John Donne is saying that death cannot actually kill a person, because good people who die, like who are confronted with death, who actually die, they don't die एक्चुअली, बिकॉज दे आर इमॉर्टल पीपल। ओके, उनके जो वर्क्स है, उनके जो डीड्स है, वो रह जाती है। उनका बॉडी भले ही अब वो वेकअप नहीं कर पाएंगे, वो बात नहीं कर पाएंगे, जीवित नहीं है, बट उनके जो काम है, उनकी जो यादें हैं, वो रह जाएंगी। ठीक है, तो वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ओके ओके, सो नाउ ही सेज दैट now he compares death with other things. He says that death is just like a condition जिसमें कि रेस्ट होता है, permanent rest of the body. But if we have health issues, if we want to sleep or take rest for some time, like for example जिनको हेडेक होता है, जिनको माइग्रेन का इशू होता है, या फिर जिनको डिप्रेशन होता है, उनको एंटी डिप्रेसेंट वाली जो है दवाइयाँ दी जाती है, मेडिसिन दिए जाते हैं। माइग्रेन में भी कुछ मेडिसिन होते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है, और हाँ, स्पेशली जो जब बहुत स्नीजिंग होता है ना, वो जब बहुत छींक होती है, छींकें आती है कंटिन्यूसली, जब सर्दी होती है, तब छींक को बंद करने के लिए डॉक्टर कुछ एंटी एलर्जिक जो दवाइयाँ देते हैं। वो क्या होता है ना, उससे छींक बंद हो जाती है। लेकिन फिर उसमें बहुत नींद भी आती है, 2-3 दिन तक बहुत ज़ोरों की नींद आएगी, मतलब बेहोशी जैसा लगता है, बेहोशी जैसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आसपास क्या हो रहा है। मतलब लग रहा है कि किसी ने ड्रिंक पिला दी हो, मतलब हम लोगों को लग रहा है किसी ने नशा करवा दिया हो, ऐसे लगता है। बिकॉज उसमें क्या होता है कि ताकि ब्रेन को ये कुछ कॉन्शियस नहीं रहता है ब्रेन, ताकि उसे कुछ समझ में नहीं आए कि छींक हो रही कि क्या हो रही, कुछ नहीं पता रहता है, बस रेस्ट करने दिया जाता है, छींक को बंद कर दिया जाता है। ओके, सो क्या होता है कि ये देखिए क्या बता रहा है कि जब हम लोग मेडिसिन लेते हैं, जब हमारी तबीयत ख़राब होती है, या फिर किसी को नींद नहीं आती है, तो उसको फिर नींद की दवाई दी जाती है ताकि वो नींद ले सके प्रॉपर। स्ट्रेस की वजह से नींद ना आ सकती हो, या फिर बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद उन्हें नींद की दवाई दी जाती है ताकि वो रेस्ट कर सके थोड़ा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, तो ये भी तो दवाइयाँ है ना। तो दवाइयाँ खाने के बाद जब हम लोग रेस्ट करते हैं, तभी हमें रेस्ट मिलता है, आराम मिलता है। लेकिन डेथ जो है, ये बहुत ही अजीब सा स्टेट है, बहुत वियर्ड है। एक ऐसा कंडीशन है जो जिसे कोई एम्ब्रेस नहीं करता, जिसे कोई भी अपनाना नहीं चाहता है। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि डेथ का जो कंडीशन है वो एकदम मतलब अनएक्सेप्टेबल है। जैसे हम लोग जैसे बताया ना कि जो मेडिसिन हम लोग इंटेक करते हैं, तो वो इंटेक करने के बाद भी तो हमें रेस्ट एंड नींद ही आती है ना। तो लेकिन डेथ के बाद क्या स्पेशल, डेथ जब होता है वो परमानेंट नींद है। तो अगर देखा जाए तो कोई भी इंसान मरता नहीं है। ओके, डेथ जो है वो मतलब कोई भी इंसान मरता नहीं है, बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है, बट द सोल नेवर डाइज। ओके, तो यही जो है मैसेज वो बताते हैं। डेथ को बोलते हैं यू शुड नॉट टेक प्राउड ऑफ योर सेल्फ, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज पीपल जो है तुमसे डरते हैं, लोग तुमसे स्केयर्ड होते हैं, फियरफुल होते हैं। तुम डरो मत, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। तुम्हें अपने ऊपर ज़्यादा भाव नहीं खाना चाहिए कि लोग तुमसे डरते हैं तो तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। नहीं, लोगों को पता नहीं है कि डेथ का मतलब एक्चुअली मरना नहीं होता है, इसीलिए
शायद लोग मरने से डरते हैं। आई होप कि मेरा एक समरी आप लोगों को हेल्प किया होगा। जितना मैंने पढ़ा मैंने सेम टू सेम आपको वही बता दिया। इससे अभी तक मतलब जितना जितना मैं पढ़ती जाऊँगी हो सकता है कि मैं इस पे और रिसर्च करूँ और ज़्यादा पढूँ। तो जो भी और ज़्यादा मैं पढ़ती रहूँगी वो मैं अपने वीडियोज़ में शेयर करती रहूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ज़्यादा पढ़ती हूँ तो नहीं बताती हूँ, नहीं, जितना भी मैं पढ़ती हूँ, जितना रिविज़न करती हूँ, बस मैं आप सभी से शेयर करती हूँ। और मेरी यही मतलब जो है वो मतलब कोशिश रहती है कि एज़ अ फ्रेंड आप लोगों की, जैसे मुझे भी कोई फ्रेंड हेल्प करता है तो मुझे अच्छा लगता है ना, तो आप लोगों को एज ए फ्रेंड मैं मतलब जो है शेयर कर रही हूँ कि मैं जो पढ़ रही हूँ आप लोग भी थोड़ा मतलब अगर आप लोग इससे मेरी हेल्प से अगर आप लोगों को थोड़ी हेल्प हो जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।